اردو ادب کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے شوکت تھانوی کی کتاب شیش محل، جس کا پورا عنوان ہے شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ خاکے۔ شروع میں جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت آپ سے بے قاعدہ کی بات جو تھی وہ صحیح طریقے سے شاید بتائی نہیں تھی، لیکن اب اس کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 3/4 کتاب جو حصہ گزرنے کے بعد ایک باقاعدہ ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے، قاعدہ بے قاعدہ۔ اس کا انتصاب جو ہے وہ کہتے ہیں ان بچوں کے نام جو مجھ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی لسٹ ہے تقریباً انہی لوگوں کی جن کے بارے میں پہلے انہوں نے کچھ خاکہ لکھا ہے۔ تو ابتدائیے میں محمد طفیل جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس بے قاعدہ کو اپنی طرف سے بڑے قاعدے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود چند اسباق بے قاعدہ ہو گئے۔ یہ قاعدہ آج سے 1.5 برس پہلے لکھا گیا تھا۔ اس وقت حرفوں کی زد میں آنے والے تمام ادیب زندہ تھے۔ آج جب یہ قاعدہ چھپ کر بازار میں آ رہا ہے تو ان میں سے منٹو اور یگانہ اللہ کو پیارے ہو کر بھی زندہ ہیں۔ میرا جی کو بھی تھوڑی سی رعایت کے ساتھ زندوں میں شمار کر لیجئے۔ شوکت تھانوی صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس قاعدے میں صرف زندہ ادیبوں کا ذکر آئے، مگر وہ اپنی کوشش میں پورے کامیاب نہیں ہوئے۔ ان میں بعض زندہ ادیب مرے ہوئے بھی ہیں، مثال کے طور پر راکم الحروف اور اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اس قاعدے میں واقعات کی غلطی بھی کھٹکے گی، اس میں مصنف کا کوئی قصور نہیں۔ جب دنیا ہی کے حالات ہر لحاظہ بدلتے ہوں تو اہل قلم کے حالات جوں کہ توں کیسے رہتے؟ یہی وجہ ہے کہ جو ادیب آج سے پہلے باکار تھا آج بیکار ہو چکا ہے، یا جو آج باکار ہے وہ پہلے بیکار تھا۔ کچھ کے مشغلے بھی بدلے اور منصب بھی، جیسے صوفی تبسم غلام، جن کو ہم اکثر صوفی تبسم کے نام سے جانتے ہیں، پورا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ آج سے پہلے گورنمنٹ کالج میں اردو پڑھاتے تھے، آج خود فکر معاش کا درس لے رہے ہیں۔ پطرس اب سے پہلے پاکستان کے UNO میں نمائندہ تھے، آج وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کا دورہ کرنے آتے ہیں۔ ایسے تمام تغیر و تبدل کے باوجود اس قاعدہ کی ہمہ گیری اور افادیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ یہ قاعدہ پختہ عمر کے بچوں کے لیے لکھا گیا ہے، اس کے مطالعے سے شعور بالغ ہوگا۔ یہ جو بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ دلدار بھائی نے کچھ اپنے دوستوں کے کہنے پر اپنی سوانح عمری یا کچھ مشاہدات لکھنے کا کام شروع کیا تھا، اور جب وہ اتنے سالوں کے بعد وہ میرے ہاتھ میں آیا چھوٹا سا مسودہ، اور پڑھ کر دل کو بہت عجیب سا لگا، کیونکہ بہت سے نام ایسے تھے جو وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ واپس آتے ہیں شوکت تھانوی کی کتاب کی طرف۔ تو خود شوکت تھانوی کیا لکھتے ہیں عرض مصنف: یہ ادبی قاعدہ بے ادبی معاف، لاکھ بے قاعدہ صحیح، مگر وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے حسب حال ضرور ہے۔ زمانہ بدل کر کچھ کا کچھ ہو چکا ہے، مگر ہماری تعلیم کا سنگ بنیاد یعنی ہمارا قاعدہ آج بھی وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں تھا، حالانکہ وہ زمانہ دوسرا تھا۔ اس وقت پڑھنا ضروری تھا، اور آج پڑھنا اتنا ضروری نہیں جتنا لکھنا ضروری ہے۔ یہ بے شمار ادبی رسالے اور ان رسالوں میں لکھنے والوں کا ٹڈی دل اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادب کا پیٹ صرف علم سے نہیں بلکہ جبل سے بھی بھرا جا سکتا ہے، اور ہمارا موجودہ ادب جو آج خدا کے فضل و کرم سے اس قدر فروغ پر ہے کہ اس کے لیے برتھ کنٹرول کی ضرورت میں پیپر کنٹرول کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، یقیناً سسک سسک کر دم توڑ دیتا اگر قید صرف یہ ہوتی کہ صرف پڑھے ہوئے لوگ لکھیں۔ نہ اس قسم کے لوگ ملتے، نہ رسالوں کا پیٹ بھرتا، اور نہ یہ رسالے ہمارے ادب میں چہل پہل پیدا کرتے۔ وہ تو کہیے کہ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ادیب اور شاعر بننے کے لیے صرف تلمید الرحمن ہونا کافی سمجھ لیا گیا، اور ہر خدا کے بندے کو یہ پیدائشی حق حاصل رہا کہ وہ خواہ کچھ اور بن سکے یا نہ بن سکے، مگر شاعر اور ادیب تو جب چاہے بن سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے، نہ کسی لائسنس کی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمارے فنون لطیفہ میں سے ہمارا ادب جس قدر لطیفہ بنا ہے، اور کوئی فن اس سیلابی کیفیت میں مبتلا نہ ہوا۔ خیر کچھ بھی ہو، مگر اس کی بدولت اردو زندہ ضرور ہے، خواہ درگور رہ کر زندہ رہی ہو۔ تجربے سے ثابت یہ ہوا کہ اردو کو اگر واقعی آئندہ بھی زندہ رکھنا ہے تو اسی قسم کی زبردستی کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم صحیح قسم کے پڑھے لکھے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں۔ کسی زبان اور کسی ادب میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ممکن ہی نہیں جتنے اردو کو
यूँ कहिए कि उर्दू के अदबी रसालों को दरकार हैं। नतीजा ये कि हमको पढ़े नहीं बल्कि सिर्फ लिखे हुए लोगों पर कनायत करना पड़ेगी, और यही हमारे अदीब, हमारे शायर, हमारे अदब के अलमबरदार और हमारी ज़ुबान की सरपरस्त बनकर उर्दू को मार मार कर ज़िंदा रखेंगे, यानी उर्दू को मरने की भी इजाज़त ना होगी। आप हैरान ना हों और सिर्फ लिखे लोग की तरकीब से इतने अजनबी बनने की कोशिश न कीजिए। ये आपके अदब और आपकी शायरी के मोहसिन हैं, जो इस वक्त काम आए जब आपकी उर्दू ये बेमाँ की बच्ची मौत के मुंह में जा चुकी थी। एक महज़्ज़ब और मुतमद्दन खातून के मरने के बाद उसकी बच्ची को एक अना के सुपुर्द कर दिया गया, और ये एहतियातें सामने नहीं होती कि ये अना कौन है, क्या है, खा वो गंवार हो, पस्त अक़वाम में से हो, बदसूरत और घिनौनी हो, मगर चूँकि उसी का दूध पीकर ये बच्ची ज़िंदा रह सकती है, लिहाजा वो उसी के सुपुर्द कर दी जाती है। उर्दू भी एक ऐसी ही बच्ची है। इसकी वालदा का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है और अब वो अपनी अना की गोद में पल रही है। उर्दू की ये अना यही पढ़े लिखे लोग हैं जो जल्दी में थोड़ा बहुत पढ़कर अब इत्मीनान से बैठे लिख रहे हैं, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि तुम क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो। किस्सा दरअसल ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अव्वल तो उस वक्त पैदा होते हैं जब हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, और जब वो पैदा हो जाते हैं और पढ़ जाते हैं तो उनकी भला को क्या गरज पड़ी है कि वो उर्दू की खिदमत करें, और उस उर्दू की जो खुद अपने वतन में महाजराना ज़िंदगी बसर कर रही है। वो ज़िंदा ज़ुबानों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और मादरी ज़ुबान को घर की खेती समझकर गुजरने के लिए छोड़ देते हैं। इस सूरत में ज़ाहिर है कि उर्दू को अपना मोहसिन उन्हीं को समझना पड़ेगा जो पढ़े लिखे नहीं बल्कि सिर्फ लिखे लोग हैं। ये लिखे लोग दरअसल पैदाइशी अदीब और शायर होते हैं, और उनका सहारा सिर्फ ये मकूला है कि अदीब या शायर बनता नहीं बल्कि पैदा होता है। चुनांचे आप इससे तो यकीनन इनकार नहीं कर सकते कि ये पैदा हुए हैं, और चूँकि ये पैदा हो चुके हैं लिहाजा इनके लिए ये नामुमकिन है ये अदब की खिदमत ना करें। इनमें बहुत से ऐसे हैं जो इसी खिदमत के जोश में मकतबों से भागे हैं, बहुत से वो हैं जो इसी वलवले से मजबूर होकर तालीम की तकमील का इंतज़ार न कर सके, और ज़्यादा तादाद उन बेगुनाहों की है जो ईमानदारी के साथ अदब की खिदमत करना ना चाहते थे बल्कि ज़िंदगी के लिए किसी और सहारे की तलाश में थे। इन बेचारों ने दफ्तरों के चक्कर लगाए, मुख्तलिफ तजारती धंधे आजमाए, सही और सिफारिश का कोई इम्कान बाकी ना छोड़ा। ज़रूरत है कि इश्तहार पढ़ पढ़ कर अपनी ऐनकों के नंबर बढ़ाए, और फिर भी जब कुछ न बन सके तो अदीब और शायर बनना ही पड़ा बेचारों को। यही इनके बस का एक धंधा था जिसमें वो लग गए, और आप जानते हैं कि जो एक मर्तबा शायर या अदीब बन गया फिर वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहा। करे तो क्या करे। आप खुद ही बताइए कि अगर मुशायरों के प्लेटफॉर्म इतने बुरंजा मरंज ना होने जितने वो नजर आते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म के अलावा वो बेचारे और किस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते थे। इतनी आसानी से किसी और फनकार इस कदर नहीं उछल सकता जिस कदर ये शेर बनाने वाले तना उछल जाते हैं। ऐसी सस्ती शोहरत और कहाँ हासिल हो सकती है। हल्दी लगे ना फटकड़ी और रंग चौखाए। ये सच है कि बज़ाहिर ये मशगला ज़रिया मुआश नहीं मगर शुगले बेकारी तो है, और अगर किस्मत साथ दे जाए तो रोज़ी को हीला तो चाहिए। वो शेर व शायरी का हीला भी हो सकता है। इन तमाम हालात को देखते हुए अब ये रोज़ बरोज़ तय होता जा रहा है कि इस दौर में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं जितना लिखना ज़रूरी है, और चूँकि कुछ ना कुछ लिख सकने के लिए उर्दू की एक आध किताब पढ़ना भी ज़रूरी है, लिहाजा हमें ज़रूरत है अब ऐसे कायदे और ऐसी पहली दूसरी किताब की जो सिर्फ इतना पढ़ा सके कि तालिब इल्म बस लिखना शुरू कर दे, फिर तो अल्लाह मालिक है। इमला वगैरह की गलतियाँ लिखते रहने से खुद ब खुद या तो राइज हो जाएंगी वरना दूर हो जाएंगी। तज़कीर व तानीस के झगड़े यूँ भी मुख्तलिफ फ़ी हैं और मुस्तकिल तौर पर फसाद की जड़ है। इस तरह या तो मुस्तकिलन मुख्तलिफ फ़ी हो जाएंगे वरना ये इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। आखिर बग़ैर तज़कीर व तानीस के भी अक्सर ज़बानें ज़िंदा रहती हैं। मतलब तो यह है कि किसी तरह उर्दू ज़िंदा रहे। उर्दू के सिलसिले में बार बार उन खान साहब की मिसाल सामने आ रही है कि खुदा ने बुढ़ापे में एक औलाद नरीना अता फरमाई तो उसने होश संभालते ही मरना शुरू कर दिया हसीनों पर। और जब महल्ले वालों की शिकायतें आना शुरू हुई कि खान साहब आपके साहबजादे बदमाशी पर उतर आए हैं, तो खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे इस बात को बड़े खलूस से कहा कि साहब मैं तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ, वो बदमाश होकर ही जी जाए तो बहुत है। उर्दू के मुतालिक भी इस गौर व फिक्र का ज़माना अब नहीं रहा कि वो क्या थी और क्या हो गई है। शुक्र अदा कीजिए कि अगर वो ज़िंदा ही रह जाए। और देख लीजिएगा इस
तो अगर ज़िंदा रखेंगे तो यही लिखे लोग उर्दू के रसाइल का पेट भरने वाले, यही मुशायरों में अपने तखल्लुस लेकर शिरकत करने वाले, यही खुदरो अदीब और यही खुद साख्ता शायर। सवाल ये पैदा होता है कि ये अदीब और ये शायर बनते कैसे हैं। इस तफसील का अजमाल तो सिर्फ ये है कि बस बन जाते हैं, मगर ये अजमाल शायद बायसे तस्कीन ना हो। शायद तेरी समझ में रूदात गम न आए, शायद तेरी समझ में रूदात गम न आए, करता हूँ आरज़ू की तशरीह मुख्तसर है। इसलिए तफसील में जाना ही पड़ेगा। सियासी एतबार से नाम उसी वक्त उछल सकता है जब लीडरी के दर्जे तक पहुँचते पहुँचते आदमी खासा लंडोरा बन चुकता है। बीवी उसकी ज़िंदगी ही में अपने को बेवा समझकर सब्र कर लेती है, बच्चे यतीम खाने में दाखिल हो चुकते हैं और ख़ुद ये हजरत हर तरफ से बेनियाज होकर सिर्फ सियासत के न्याजमंद बाकी रह जाते हैं। आधी ज़िंदगी जेल में और आधी जेल की तमन्ना में बसर कर चुकते हैं। इसी तरह नामवर तलबा, नामवर पहलवान और नामवर वकील और हर तरह का नामवर होने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। सिर्फ ये आसानी मिन जानिब अल्लाह अदब और शेर को हासिल है कि एक गज़ल पढ़कर और मुशायरे के सामईन को अपनी खुशलहाफी से बेवकूफ़ बनाकर एक आदमी शायर मशहूर हो सकता है। एक मजमून लिखकर और मजमून के साथ एक तस्वीर छपवा कर आदमी मजमून निगार बन जाता है। इस आसानी से अगर कोई फ़ायदा ना उठाए तो ये कुफरान नेमत के सिवा और क्या है। ये अदीब और शायर जब रसालों में अदीबों और शायरों को हज़रत और मौलाना लिखा हुआ देखते हैं, खुद भी हज़रत और मौलाना बनने को जी चाहता है। ये अदीब और शायर जब मुशायरों में देखते हैं कि एक वाजबी सा आदमी स्टेज पर गया और दाद के ख़जाने लूट लाया, तो उनको भी एक तखल्लुस की जस्तजू होती है और अगले मुशायरे में वो भी एक तखल्लुस लेकर शिरकत करते हैं और दाद पाकर इनको एहसास होता है कि हम खामखा अब तक गुमनामी में पड़े रहे। इन अदीबों और शायरों को अदीब और शायर बनने का शौक़ अदीबों और शायरों की शोहरत से कुछ और भी ज़्यादा होता है, जो बेशुमार पापड़ बेल कर इसी शोहरत के मुस्तहिक होते हैं। चुनांचे वो उनके चरबे उतारते हैं, उनके नक्शे कदम ढूंढते हैं और उनके रास्तों से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी किस्म के चंद मशहूर अदीब और शायर इस कायदे में जमा कर दिए गए हैं ताकि उनके मुतालिक ताज़ा वारताने बसात और अदब व शेर को इब्तदाई मालूमात हासिल हो जाएं। ये ताज़ा वारद अरब से अंडा नहीं जानते, वो तो इम्तियाज़ अली ताज की तरह अनारकली के मुसन्निफ की हैसियत से मशहूर होना चाहते हैं। लिहाजा इनको अलग से इम्तियाज़ अली ताज ही क्यों ना पढ़ाया जाए, ताकि सिर्फ ये कायदा पढ़कर वो बराह रास्त इम्तियाज़ अली ताज बनने की कोशिश ज़रूर कर देंगे। यानी इम्तियाज़ अली ताज अपनी कोशिश से इम्तियाज़ अली ताज बने हैं तो वो बगैर किसी कोशिश के इम्तियाज़ अली ताज बन जाएं। ये कायदा जिस कदर बेकायदा है, इसी कदर बराह रास्त है। तालीम का मकसद जब तालीम था वो दौर गुजर चुका, अब तालीम का मकसद वो है जो इस कायदे से हासिल होगा। इस कायदे में जिन अदीबों और शायरों का जिक्र है, उनकी शोहरत को रश्क से देखने वाले यही तो चाहते हैं कि वो खुद भी उन्हीं जैसे बन जाएं। चुनांचे इब्तदाही में उनसे तारफ़ करा देना ज़रूरी समझा गया। इस कायदे को महकमा तालीम मंजूर करे या ना करे, मगर ये कायदा मंजूर नज़र बन कर रहेगा, इसलिए कि ये बड़ी मकसदी चीज़ है। महकमा तालीम का मकसद तो कलर साजी है, मगर ये कायदा उर्दू के मुहाफ़िज़, उर्दू के मसीहा और उर्दू के वो मोहसिन पैदा करेगा जो उर्दू को अगर मार भी डालें तो भी उर्दू को ज़िंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। शौकत थानवी। कैसा लगा आपको? एक किस्म से उन्होंने जो खाके उन लोगों के बारे में बातचीत की है मुख्तसरन, जिनके साथ उनका ज़िंदगी में कहीं ना कहीं राब्ता हुआ या राब्ता रहा, लेकिन इससे बहुत अजीब सा एक तासुर मिलता है। और जो बात उन्होंने कही है उर्दू के बारे में वो वाकई में बिल्कुल ठीक है। तो शीश महल कायदा बेकायदा खाके जो हैं, शौकत थानवी की ये किताब का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये जो ख़ास तौर पर उन्होंने डेडिकेट किया है उन बच्चों के नाम जो उनसे पहले पैदा हुए, तो वहाँ से कुछ अगली दफ़ा अगली पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे, तो मुआवजना अच्छा रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.